वेलकम फ्रेंड, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन वायरकैर और वायरकैर टू इन ओरेकल एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इस सब पॉइंट्स को डायरी में लिख लीजिए या कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए। तो बहुत होता है ना कि ब्लॉगिंग करते हैं अच्छा इंटरव्यू पॉइंट्स के लिए, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये मैं आपके लिए, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट डाला है। तो इस वीडियो में दो चीज़ है, एक तो वायरकैर और वायरकैर 2 में है, और एक वायरकैर और कैर में डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो वायरकैर difference between varchar and varchar 2. So first point is that varchar is an external data type. Varchar 2 it is an internal data type. Varchar it is ANSI SQL standard. Varchar 2 it is a Oracle standard. Third point is that its definition may be changed in the future. Varchar 2 definition will be not changing in the future due to standard in the nature. Fourth point, extra spaces are padded to the right side. Extra spaces will be truncated. It can identify null and empty string separately. It cannot identify null and empty string separately. It can store minimum 1 bytes of character data and maximum 2000 bytes of character data. Varchar 2 can store minimum 1 and maximum 4 bytes of character data. Varchar can allocate the fixed size of data irrespective of the input. Varchar 220 is defined by me and entered only 15 characters, but it will allocate for 20 characters. Varchar 2 can allocate the variable size of the data input. For example, Varchar 220 is defined by me, enter only 15 characters, and it will allocate a space for 15 characters. Varchar is supported by many or different type or various type of relational database system. Varchar 2 is specific to the Oracle database system. Varchar occupy space for the null value. Varchar 2 do not occupy space for the null value. Varchar memory is best. Varchar 2 memory is not best. This is the another interview questions. Difference between char and varchar data types in Oracle. Char stands for character, varchar stands for variable character. Char it is a static data type which is used for fixed length. It is a dynamic data type which is used for variable length. Char is faster than varchar or varchar 2. Varchar is slower than char. Maximum size of char is 2000. Minimum size is 1 bytes, whereas in the varchar minimum size is 1 byte, maximum size is 4000 bytes. Char is not required to mention the size of database while declaration. By default, it will be 1 byte. It is required to mention the size of data type while declaration. Right padding will exist if the variable data size is not properly allocated as per assigned value. Right padding will not exist if the variable data size is not properly allocated or for assigned value. So thank you for watching this interview questions. Now I am going to come through the practical session. So I will just try to explain you with the help of what some concept related to the varchar and varchar, so you can understand it, the differences for the interview point of view. तो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल सेशन में और इसको समझेंगे कैसे है। देखिए दोस्तों, ये एक टेबल हम लोग बनाते हैं, क्रिएट टेबल सैंपल नाम का एक टेबल बनाते हैं। इसका हम लोग जो है डाटा टाइप जो होता है varchar डालते हैं, ठीक है। varchar अब हम लोग 10 डालते हैं, ठीक है। varchar 10 डालते हैं और इसका और दूसरा जो इसका जो कॉलम नेम हम लोग डालते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसका हम लोग varchar 220 डालते हैं, ठीक है। 20 डालते हैं और इसको जो था सेमी कॉलम के साथ इसको क्लोज करते हैं। अब इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे
तो देखिए ये कह रहा है कि नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट बाय एग्जिस्टिंग, तो ये टेबल ऑलरेडी है, तो हम लोग जो है ना पहले ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल सैंपल। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो टेबल ड्रॉप हो गया। अब हम लोग पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तो क्रिएट करेंगे, तो सैंपल टेबल क्रिएट हो गया। अब इसका हम देखेंगे कि ये जो टेबल क्रिएट हुआ है उसका क्या डाटा टाइप है। तो डिस्क सैंपल करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको डाटा टाइप का साइज वाइज सब यहाँ दिखेगा जो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं नेम है, टेबल का नेम, कॉलम नेम में नेम, मोबाइल नंबर हो गया, और भैर कैट 210 है, भैर कैट 220 है। तो ये भैर कैट 10 ऑटोमेटिकली भैर कैट 210 पे ये ओरेकल में हो जाता है। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये चीज़ है कि आप इस जो टेबल को आपने जो, अब हम इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और इंसर्ट वैल्यू करने के बाद अब इंसर्ट एक वैल्यू करते हैं, तो इंसर्ट इनटू सैंपल फिर उसके बाद आपको ये जो होता है ओपन ब्रैकेट खोल लेते हैं, नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये डालते हैं, और उसके बाद ये वैल्यूज़ जो होता है वैल्यूज़ करके ये जो है ना इसमें हम लोग राम लिखते हैं, और उसके बाद जो है नए कुछ मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखे और ऐसा एक वैल्यू डाल दिए। तो ये वैल्यू डाल दिए, तो अब इसको देखेंगे, मानो अगर मुझे देखना है कि ये वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सैंपल किया, तो ये जो है ना आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो राम और मोबाइल नंबर आपको आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो अब आप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमको इसका जो होता है ना एक डंप फंक्शन है, जिससे हम लोग है ना आपका डाटा टाइप के बारे में, कितना लेंथ ऑक्युपाइड हुआ है, कितना क्या हुआ है, सब चीज़ उसमें दिखता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट नेम डंप, और लिखेंगे ये नेम, और नेम के बाद नेम डंप नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, और फिर डंप लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, और फ्रॉम सैंपल लिखेंगे, ठीक है, सैंपल लिखेंगे। तो ये जो क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर डंप लिखा हुआ है, टाइप 1 है, ठीक है, लेंथ 3 है, और 82971109, और ये जो देखिएगा मोबाइल नंबर है, इसमें लेंथ 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 10 डिजिट का है, और ये से ये 20 का। तो ये जो इसका जो दिख रहा है ये 10 जो भी जो डिजिट है ना 9, तो ये पूरा उसका वो दे रहा है उस चीज़ का। एक तो ये चीज़ हो गया, और दूसरा है दोस्तों, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट लेंथ नेम, और जो है ना लेंथ मोबाइल नंबर, ये फ्रॉम सैंपल लिखेंगे, ठीक है, सैंपल लिखेंगे। तो ये जब हम क्वेरी चलाएंगे, तो देखिए इसका लेंथ आपको दिख रहा है 3 है और 10 है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको पूरा दिख रहा है। अगर मानिए हम इसके लेंथ जो स्पेसिफाइड है फॉर एग्जांपल यहाँ पर उससे बहुत बड़ा लिख देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो इंसर्ट नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी बात ये है कि इसी तरह अब हम लोग दूसरा चीज़ जो होता है ना, एक और टेबल बनाते हैं जो होता है सैम्पल टू टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल सैम्पल टू, ठीक है। और इसमें हम लोग जो ले लेंगे, नेम ले लेंगे और कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर ले लेंगे, इसमें कोई साइज हम नहीं डाल रहे हैं, साइज हम नहीं डाल रहे हैं, साइज आप जो देखिएगा हम नहीं डाल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम वही फिर से ड्रॉप टेबल कर देंगे, क्योंकि हमको आपको दिखाना है। तो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस किया था पहले ही आपको दिखाने से पहले, तो ये चीज़ वो टेबल इसलिए रह गया। तो ये देखिए, ये जो है टेबल ड्रॉप हो गया। अब हम लोग जो इसको टेबल को जो है ना क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल जो है, ये जो है ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह का ये एरर आ रहा है, तो हम लोग कुछ जो है नेम वन डाल देंगे, ठीक है। नेम वन डाल देंगे, फिर क्रिएट करेंगे। तो अगर ऐसा आ रहा है मानिए, तो हम लोग यहाँ पर सैम्पल टू डालेंगे, क्योंकि हम लोग सैम्पल वन डाले थे। तो अब इसको डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और ये इसको फिर क्रिएट करेंगे टेबल, तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट टेबल हो गया। अब इसका हम लोग डाटा टाइप भी देखेंगे कि क्या है। सैम्पल टू डाले हैं, तो क्या इसका आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसका साइज नहीं डाले तब भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट आ रहा है। अगर आप साइज नहीं डालिएगा, वही डिफरेंस मैं आपको बताया था ना कि अगर आप इसका साइज जो ये जो डाटा टाइप का साइज नहीं डालिएगा, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट ले लेगा। अगर मानिए इस टेबल में हम लोग कुछ डाटा ज़्यादा डाल देते हैं, माने इंसर्ट इनटू सैम्पल टू, और जो है इसमें जो नेम वन है, नेम वन है। अब इसमें अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें कुछ ये जो है वैल्यूज़ डालेंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ डालेंगे। तो अब इसमें वैल्यूज़ डाल करके मैं नेम वन दिख रहा है, और इसमें मैं बहुत बड़ा नाम लिख देता हूँ, राहुल कुमार, ठीक है। राहुल कुमार दरभंगा बिहार _ बिहार डाल करके ऐसे बहुत बड़ा डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा ये पक्का जो है ना एरर थ्रो करेगा। देखिए एरर क्या कर रहा है, वैल्यू टू लार्ज फॉर कॉलम सिस्टम जो है सैम्पल टू नेम डॉट वन, एक्चुअली 28 है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 1 बाइट है। तो ये कैरेक्टर का ये सबसे बड़ी बात है। अब कैरेक्टर का जैसे मानिए एक टेबल हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग जो है ना, ये देखिए, ये जो है इसका साइज हम लोग 50 लिख देते हैं, ठीक है। 50 लिख देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसमें हम लोग सैम्पल वन टेबल एक ले लेते हैं, क्योंकि सैम्पल वन टेबल हमने बनाया नहीं था। तो सैम्पल वन टेबल बनाते हैं, तो ये भी एग्जिस्ट दिख रहा है, तो वही है, ड्रॉप सैम्पल वन टेबल डाल देंगे, तो हम लोग फिर नया टेबल है जो बना लेंगे। यहाँ पर सैम्पल वन टेबल ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ड्रॉप कर दिए अब हम लोग। अब ड्रॉप करने के बाद ये जो टेबल है
इसको देखिए, ये जो टेबल है इसको हमने क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसी तरह इसका जो है हम लोग साइज भी चेक कर लेंगे, क्योंकि बना है कि नहीं ये तो काम करने से पहले हमको तो चेक करना होगा ना। तो डिस्क सैंपल 1 हम लोग डाल देंगे। तो सैंपल 1 जैसे हम लोग डालेंगे ना, तो यहाँ देखिए नेम 1 कैर जो है 50 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये जो टेबल बनाए हैं सैंपल 1 का, इसमें ये देखिए 28 कैरेक्टर का है ये, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ले लेगा, क्योंकि ये 50 साइज का है, इसका 28 है तो ले लेगा ये। तो ये 1 रोज इंसर्टेड। अब इसको हम लोग सेलेक्ट स्टार से देखेंगे कि वास्तव में वैल्यू गया कि नहीं। चेकिंग तो अपने तरफ से करना रहता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल 1, ठीक है। ये सैंपल 1 देखेंगे, तो ये जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से rahul.kumar darbhanga.bihar इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो बिहार जैसे आ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो अब हमको करना क्या है, करना ये है कि अब इसका हम लोग लेंथ देखेंगे। तो लेंथ 28 आना चाहिए, ठीक है। लेंथ जो है 28 आना चाहिए, लेकिन इसका जो लेंथ है 50 आएगा। देखिए हम ये टोटल 28 है, लेकिन 50 आएगा कैर का। देखिए सेलेक्ट लेंथ ये जो है नेम 1, यहाँ डम्प भी देख लेते हैं, यहाँ नेम 1 भी लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि ये हम कर क्या रहे हैं। और फ्रॉम सैंपल 1, ठीक है। अब हम लोग ये लिख दिए। अब जैसे है इस टेबल को हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए ये 50 है, लेंथ जो है ना 50 है इसका, लेकिन इसका लेंथ कितना है टोटल 28 है, हमने पिछले क्वेरी से दिखाया था। अब देखिए टाइप देखिए 96 है, तो टाइप 96 है। और नेम 1 में ये देखिए, तो इसको गिनिएगा तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टोटल कैरेक्टर्स है। तो ये आपको देखिए, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसा है। यहाँ भी लेंथ 50 दिख रहा है, जबकि ऐसा VARCAT 2 में नहीं होता। तो ये एक मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया है। तो आप इस डिफरेंस को देखिएगा, तो आप कॉन्सेप्ट को है ना बहुत अच्छी तरह से समझ जाइएगा। और आपको मैंने हर चीज़ जो होता है वो कवर करने के लिए जो है ना, कवर करने के लिए सब करके दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नई नई और भी चीज़ें बताऊंगा। इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और बहुत सारा प्यार लुटाएं इंटरनेट डैश ट्यूटर्स में। थैंक यू, धन्यवाद।